Hello students, today onwards we are going to start the next lesson from your syllabus. That is very important and very simple lesson for 9th and 10th standard also. This lesson is very important. Its importance you will come to know that when you will go into the 9th and 10th standard. That's why you be careful whenever the explanation is going on. Here I have written some points. Those points we have already discussed. The name of the lesson is Introduction to Graphs. Today we are going to start the new lesson from your syllabus, that is Introduction to Graphs. Okay, in this Introduction to Graphs, what we are going to discuss, that one by one we will see afterwards. But before that, what we have discussed before that regarding to the graph, that I am going to tell you. Here first point I have written, that is a bar graph. How to draw bar graph, in which conditions we have to use bar graph, which steps we have to follow when we are drawing a bar graph. Then after that, a pie graph means a circle graph. We have drawn circle, then how to draw that circle graph. Then histogram, how to draw histogram, which steps we have to follow. Those all other things we have discussed in the previous lectures, and I hope so you have practiced it in a proper way. Then we have discussed how to draw bar graph, after that how to read bar graph. We have discussed how to draw pie graph, after that how to read pie graph. Then histogram also. We have discussed those all other points in the previous lectures. Those points already written here. For what purpose? Because we have studied those points. Got idea? And those points are nothing but graphs also. वो भी एक प्रकार के ग्राफ ही थे. ओके, तभी इधर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्यों लिखा है? बिकॉज देर इज वन अगेन ग्राफ, हियर आई हैव रिटन नेम अ लाइन ग्राफ. ओके, तो लाइन ग्राफ निकालते वक्त हमें जो पॉइंट इस्टेब्लिश करने होते हैं, हाउ टू इस्टेब्लिश दोज पॉइंट्स. पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है. तो जब हम एक्सिस लेते हैं, तो एक्सिस लेते वक्त एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, वो लिखते वक्त कौन सी प्रिकॉशन हमें लेनी है, स्केल कैसे लिखा जाता है, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें इस लेसन में हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो सिंपली जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट है वही बातें हम इस लेसन में वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन that I am going to tell you, a line graph. A line graph means in this first point only we are not going to discuss how to draw line graph. Afterwards we will see it. But now today, first of all, the knowledge which is you are having, means the basic knowledge regarding to a line graph, that we are going to check first of all. And exercise 15.1 is depend upon that only. Knowledge we are going to check means what? You may feel like that, sir teaching के पहले knowledge कैसे check कर रहे हो. Okay, तुम अगर देखोगे लाइन ग्राफ कैसे निकाला जाता है, लाइन ग्राफ कैसा होता है, तो तुम इजीली आंसर उसका बता सकते हो. उसका जो एक्यूरेट फंक्शन है, एक्यूरेट जो उसके स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं. ओके, बेसिकली भी देखने वाले हैं, बेसिक से ही हम आगे जाने वाले हैं. लेकिन अभी हियर आई हैव रिटन वन क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन विल टेल यू हाउ दैट लाइन ग्राफ इज ड्रॉन, मीन्स हाउ दैट लाइन ग्राफ इज लुक्स. Okay, and after looking that line graph, how simple questions are asked on that, those points we are going to discuss in the today's lecture. That's why I have written here a line graph. The next point is what? Line graph. Name read करने के बाद ही तुम्हें पता चला होगा. The graph which is written in the form, the graph which is drawn, the graph which is constructed in the form of line, that is known as the line graph. Why this line graph is used? Line graph as usual, like bar graph, a pie graph, a histogram. In those graphs also we are using different types of information, and that different types of information we are trying to elaborate by using a shape. Means in the bar we are using that bar shapes, and those bars, by using those bars we are showing the different types of information in a different way. In the pie graph we are using given information, we are converting that given information in the angles. In the histogram also, this histogram is also one type of bar graph, but that is drawn in a separate manner. ओके, वैसे ही लाइन ग्राफ की भी कुछ खासियत है, वो खासियत हम इस पॉइंट में स्टडी करने वाले. ओके, पहले किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाते हैं इस लाइन ग्राफ पे, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने इधर लिखा है. एक क्वेश्चन मैं तुम्हें आज सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ. उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे, दैट यू ट्राई टू सॉल्व. तो क्वेश्चन कैसा होता है देखो. Given graph describes the distance of a car from a point P. Okay, given graph describes the distance of a car from a city P, और point P भी हो सकता है, from a city P,
एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि डिफरेंट टाइम में उस कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है P से स्टार्ट होते हुए, तो वो डिस्टेंस ग्राफ में दिया है। व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिटी P टू सिटी Q विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स P से Q जो सिटी है वो दोनों में का डिस्टेंस उन्होंने दिया है 350 किलोमीटर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ग्राफ तुम्हें ऑलरेडी दिया जाएगा, वो ग्राफ तुम्हें देखना है। ग्राफ देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू दिस उसका हमें आंसर देना है। ओके, तो ग्राफ ऐसा दिया जाएगा, इधर देखा दिया है, देखो गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स, यानी कि इधर एक ग्राफ दिया है। मैंने इस पेपर पे वो ग्राफ नहीं ड्रॉ किया, पेपर ग्राफ पेज पे ही वो ग्राफ ड्रॉ किया है। मैं तुम्हें अभी इधर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो इस ग्राफ को तो तुम्हें समझ में आएगा। इधर देखो, इधर लिखा है टाइम, ओके 8 AM, ए एम है नीचे, AM 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, ओके। तो बाद में 1 PM, 2 PM और 3 PM, 12 के आगे PM हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, गॉट इट अप टू दिस स्टेप। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, वी आई टोल्ड यू एक्स एक्सिस। अभी इधर देखो, इस वाई एक्सिस पे क्या दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम P इन किलोमीटर। इधर देखो डिस्टेंस शो किया हुआ है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। गॉट आइडिया? और ये ग्राफ हमें दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी वो ड्रॉ करके देते हैं। अभी ऑलरेडी क्वेश्चन ड्रॉ वो ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इधर स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इस ग्राफ को देख के हमें आंसर देने हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज में मिलेंगे, मैंने तुमको अभी अभी बताया। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, तो कैसे आंसर उसके फाइंड आउट करने हैं। रीड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सेस। ओके, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सेस। अभी देखो पहला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाट इज शोन, टाइम, एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस व्हाट इज शोन, डिस्टेंस फ्रॉम P। ओके, तो दैट वी हैव टू राइट, सिंपली वही लिखना है जो दिया है। ओके, आंसर ऑन horizontal axis, which one, x, what is shown, time, time is shown, and on vertical axis, vertical axis कौन सा होता है, y, what is shown, you see here, once again I will show you। इधर देखो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस P इन किलोमीटर। क्या दिया है, जो दिया है, जो ग्राफ देखने के बाद तुम्हें पता चलता है वही लिखना है। ऑन वर्टिकल एक्सिस y, डिस्टेंस फ्रॉम P इन किलोमीटर। सिंपली ये आंसर लिखना है, समझे? अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, फ्रॉम वेयर एंड वेन डिड द कार बिगिन्स इट्स जर्नी। क्या क्वेश्चन है देखो, फ्रॉम वेयर एंड वेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। उस कार ने किधर से जर्नी स्टार्ट की, एंड ये देखो फ्रॉम वेयर एंड वेन, तो हमें टाइमिंग भी उसका लिखना है। इधर देखो ध्यान से, जर्नी एक्चुअली स्टार्ट किधर से हुई है, क्वेश्चन में ही दिया है उन्होंने। ओके, इधर देखो गिवन ग्राफ डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम अ सिटी P, यानी कि सिटी P से उसने जर्नी स्टार्ट की है। तो हम इसे इधर आंसर में लिख सकते हैं, कार हैज स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम सिटी P, car has started journey from city P। okay, at what time, look here, इधर देखो कितना है टाइमिंग, कितना है इधर देखो 8 AM। क्या है 8, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एट, क्या लिखा है देखो, कार हैज स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम सिटी P एट कितने AM को,
8 AM। अंडरस्टूड? ओके, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी तीसरे क्वेश्चन तक की तरफ हम जा रहे हैं। देखो इधर वन बाय वन हम जाएंगे। ओके, नोटबुक एडजस्ट कर रहा हूँ इधर। देखो, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर? डू यू अंडरस्टैंड? हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर, यानी कि फर्स्ट आवर में कार कितना डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है। देखो इधर, इधर देखो, 8 AM से 9 AM ये फर्स्ट आवर है। तो फर्स्ट आवर में किधर से स्टार्ट हुआ? इधर से, पी से स्टार्ट हुआ, तो इधर तक गई है। देखो इधर कितना डिस्टेंस है? 50। ओके, इट इज़ इन किलोमीटर, गिवन इट इज़ इन किलोमीटर। तो पहले आवर में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 किलोमीटर। कार हैज़ कवर्ड हाउ मच डिस्टेंस? 50 किलोमीटर। डू यू अंडरस्टैंड? सिंपली ऐसे आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड आवर? अभी इधर देखो ग्राफ में। ओके, सेकेंड आवर 9 to 10। ओके, 9 o'clock जब हुआ टाइमिंग, तब कार किधर थी? 50 किलोमीटर पे। 50 से 10 o'clock तक किधर तक पहुंची? 150 किलोमीटर तक। ओके, तो 50 से 150 किलोमीटर कितना डिस्टेंस हो गया? 100 किलोमीटर, यानी कि सेकेंड आवर में कितने किलोमीटर गई? 100। अभी देखो 10 से 11 दूसरा आवर है, तो 150 से 200 यानी कि 50 किलोमीटर, यानी कि सेकेंड आवर में कितने किलोमीटर गई? देखो इधर, इन सेकेंड आवर कार कवर्ड, कितना डिस्टेंस बोला मैंने? 100 किलोमीटर। व्हाट इज डिस्टेंस? 100 किलोमीटर। एंड इन थर्ड आवर कार कवर्ड, कितना हमने देखा? 50 किलोमीटर। समझे? ऐसे ग्राफ देख के सिंपली क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट देखो, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स? हाउ डू यू नो इट? देखो इधर ग्राफ, स्पीड सेम है क्या? देखो फर्स्ट 3 आवर में, पहले आवर में कितनी गई? 8 से 9 तक पहला आवर, इधर दिख रहा है 8 से 9 तक 50 किलोमीटर गई है, इधर पहला स्टॉप है। 9 से 10 तक, इधर देखो 50 से 150, 50 से 150 यानी कि कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर हो गए। तो 10 से 11 तक अगेन 50 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस सेम है क्या? देखो, वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स? हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर क्या? नो, स्पीड वॉज नॉट सेम इन फर्स्ट 3 hours. Okay, no, speed was not same. Got it? Yes. No के बाद कॉमा दे दो। No, speed was not same in the first 3 hours. How do you know it? After observing graph. कैसे हमें समझ में आ गया? आफ्टर ऑब्जर्विंग ग्राफ। क्या हमने ऑब्जर्व किया? फर्स्ट आवर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 50 किलोमीटर। सेकेंड आवर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 100 किलोमीटर। थर्ड आवर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 50 किलोमीटर। तो डिस्टेंस सेम है क्या? देखो नहीं सेम है, तो इट इज नॉट सेम। और लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू? जो लास्ट पॉइंट देखो अभी इधर ध्यान से देखो फिगर को, यानी कि ग्राफ को। इधर देखो 350 किलोमीटर इधर है, 350 किलोमीटर के पूरे नीचे आ जाओ, कितना दिख रहा है इधर? 2 PM, यानी कि 2 PM को दिख रहा है क्या? 2 PM। ओके, 2 PM को कार किधर पहुंची? सिटी क्यू। एट 2 PM कार
reach city Q. At 2 PM car reach city Q. समझे? ऐसे सिंपली तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ देखना है और उसके आंसर्स लिखने हैं. ओके, ये इसके रिलेटेड पहली एक्सरसाइज है, सॉल्व करने की कोशिश करो. रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.